Namaste, Sat Sri Akal, Salam. Welcome back to season 2 of Crick Chat with Karun, SWCC TV. It's been an amazing journey from the time we started this club, from the time we wanted to enter a league and we were newbies. And we talked about यार कहाँ खेलेंगे क्या करेंगे जगह चाहिए खेलने के लिए बस एक टीम मिल जाए दो टीम मिल जाए मैच खेलेंगे जाके मजा आएगा सैटरडेज को संडे भी मिल जाए खेलेंगे जाके बट नाउ हम ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे हमारी टीमें चैंपियनशिप जीत रही हैं और नई टीमें हम डाल रहे हैं और दया रही भगवान की तो और टीम डालेंगे। इसको नज़र में रख के दो स्पेशल गेस्ट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हमारे स्पार्टन्स के कैप्टन देवाशीष मोहंती भाई और हमारे इनविंसिबल के कैप्टन कन्ना दास दादा। सो लेट मी ब्रिंग इन टू द ग्रुप। Thank you guys for coming to Crick Chat with Karun, SWCC TV. Hello, Paji. Good afternoon. It's our pleasure, Paji. It's our pleasure to join your show. अरे नहीं, ये हमारा शो है, ये SWCC TV का शो है और यहाँ पे आज बहुत मजे करेंगे, बहुत बातें करेंगे और आपके लिए बहुत बड़े बड़े चीजें आने वाली हैं। आपको अभी आइडिया नहीं है क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले यार टाइम वेस्ट नहीं करते। थैंक यू गाइस, यू वर वेरी पेशेंट। थोड़ा आज ग्लिच हुआ था अबाउट दिस सिस्टम। तो बीइंग अ क्लब व्हिच इज फुल ऑफ आईटी गाइस, दैट हेल्प्स कि सबने हेल्प किया और वी आर नाउ देयर। तो पहले शुरू करेंगे हम कन्ना दादा से। कन्ना दादा ना ही हमारे कप्तान है इनविंसिबल के, एसडब्ल्यूसीसी एग्जीक्यूटिव भी हैं। दादा कैसा रहा सीजन ये? I think season from the last season and for the last few years, I think we couldn't have asked for a better season like this within the four cricket league. I think for the club, one team becoming the champion again, consecutive second year within the Premier Division, and one team becoming the runners-up in the same Premier Division, and then the Invincible, the third team, who was actually literally last year, it was just a, you know it very well, Paji. So we had this team just to see whether we can have playing 11 on the ground for all the matches. And this time onwards, I think we are in a shape where we have a team in place, a regular playing 11. And we can see the result that we could have gone up to the Div 1 as well. If there will always be buts and ifs, but there are some reasons like the weather and all those things. The other teams are not playing when we are not having matches because those matches were abandoned. We played the most number of matches. So all these things, those are ifs and buts, will always be there, but those were not in our hand. But as a team, I think all the three teams, we not only played well, but also I think we played with the spirit. And that shows that, and we have quite a few newcomers in the club as well this year. So I think we couldn't have asked for a better season. I think it's a stepping stone that we can see where we can go next year. And that's how our graph is. So it's always upward and upward and upward. And I hope that it will always be like this. And I hope, करना दादा, बहुत अच्छी बात आपने करी है कि upwards and upwards जाएं। और अब इसी में ओपनिंग स्टेटमेंट पूछेंगे देवा भाई से, एज अ कैप्टन ऑफ स्पार्टन्स, कैसा रहा सीजन कंपेयर टू लास्ट टाइम एंड दिस टाइम? ये सीजन कैसा रहा? Before I get into Spartans, Paji, I would like to talk about our club, right? As Dada said, it is like one of the best season for the club, and because two of our Premier Division team became the champions and runners-up, and we won the Surrey Slam as well, right? The T20 as well, which we have been trying from last 3 years. So this year, finally, we made it through the final and we won it, right? So it's probably the golden year of the club, I would say. I don't think we can achieve more than what we have done this year. And coming to Spartans, it's you have been the captaining for the side, right, from last 2 years, and replacing you or filling your shoes, I would say, right? It was a big ask when we have a lot of senior members on the team as well, right? So it's a big thing, and finally, I mean, we could not be the champion, but we at least be the runners up.
So at least it's give us something this year, right, which we have been trying from last 4 years. I see Spartans always finishes number 3 continuously for last 3 years, right? So there is always a very thin line between these three, 2 and 1, because all these three teams are always a high performer team, right? So we tried this year or managed to reach number 2 but could not go to number 1. But yes, a lot of things to learn from this year, Paji, and I'm sure we will do better than this year in the next year. मुझे बहुत बढ़िया बोले आप मेरे भाई. ऐसा, and it's not about filling any shoes. Deva bhai, you have done something for Spartans that me or any other captain could and never done it. So kudos to you मेरे भाई. Hats off to you. You've Thank done you, an Paji. amazing job. Thanks. You've done very well. But मैं एक सवाल पूछूंगा. मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, जवाब साले इंग्लिश में आ रहे हैं. ये मातृभाषा में बात करेंगे, अपना शो बनाएंगे. ट्राई करेंगे पाजी हिंदी में भी हाँ, बात अरे करने के लिए. सब हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो ये कहाँ से इंग्लिश में जवाब आ रहे हैं यार. ये SWCC टीवी है. हिंदी हिंदी क्या इज मजे की बात नॉट होने वाली नॉट है. आवर मदर टंग, सो इधर उधर थोड़ा हो जाता है पाजी. अरे हिंदी बहुत में. अच्छी हिंदी बोलते हो भाई आप. बहुत अच्छी हिंदी बोलते. दादा इतनी अच्छी हिंदी बोलता है. मैं कितनी अच्छी बंगाली बोलता हूँ. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. दादा के लिए पहला सवाल. दादा, लास्ट ईयर से लेके इस साल क्या चेंज था मेंटालिटी का एज अ कैप्टन? क्या चैलेंजेस थे, क्या रोड ब्लॉक्स थे, और क्या आपने देखा है कि रिजल्ट क्या आया लास्ट ईयर टू दिस ईयर? Okay. So last year में पाजी अगर We lost दादा. दादा, वी लॉस्ट दादा. चलो देवा भाई आपकी तरफ आएंगे. सवाल आपके लिए भी है. सेम सवाल. लास्ट ईयर से इस ईयर क्या चेंजेस देखे आपने एज अ कैप्टन? पिछले साल आप प्लेयर खेल रहे थे, इस साल एज अ कैप्टन खेल रहे हो. क्या चेंजेस आपने देखे हैं कि जो आपको टास्क मिले गए थे, जो आपने फेस किया है एज अ कैप्टन, सिलेक्शन हो, भले प्लेयर अवेलेबिलिटी हो, कुछ भी हो, क्या क्या उसमें आपने क्या देखा आपने इस साल? आई थिंक दादा इज बैक पाजी, सो लेट्स हियर. आई मीन दादा से पहले सुनते हैं, फिर मैं बोलता हूँ पाजी. दादा. Yeah, so Paji, last year में जो देखे थे हम लोग for the invincible team that we are just not having a regular playing even 7 people for around 10-12 matches. Now this year when we started, we had at least started with around 5-6 people always together, and then by half of the season was there, we were having a constant almost core 8-9 people playing together. And if you see the performance of the team, so इस सीजन में लास्ट में हम लोग all the teams with whom we have lost in the first leg, we have won against them in the second leg. So it all tells me, or you know it better than anyone else, I think आपके पास अगर constant 11 रहेगा ना, उन लोगों का capabilities doesn't matter करता है. As a team, if you perform, you will always get the result, and that's what I can see. And with respect to your question about the captaincy, after playing the last season, I think we few people, we were playing for the invincible, we had a chat, and we thought that we need to all of us need to perform so that we can support the newcomers or the other people who wants to come and play the game of cricket. And we can see in some of our performances that Nishan becoming the topper in the league, topper in Div 2 with all these wickets, and the way he bowled, and he didn't get a chance to bowl earlier, so if he, the way he has bowled in all these matches, and please note that he was not available in the first 4-5 matches. He was not available for his travel reasons. The result could have been different. It's like when my partnership with Nishant in the bowling was really good, and we really discussed each other that we need to perform, which we have played earlier in the upper division, to help this team, the newcomers, to set a footprint in the league. And I think we did that. And that's what I'm quite hopeful that the newcomers who have played next season, they will take it forward. So that's how I have seen. Very proud of the team. And as a captaincy, I think it's, yes, it's having its own pressure,
but I think it has helped me to perform well as well this season. And I know that you're a I was proud enjoying the captaincy, Paji. I know you're a proud captain. I'll come back to you. I have some questions for you about being a proud captain. Let's go to Deva Okay. Bhai. Deva Bhai, same question for you. uh, uh, last season and this season, Paji, हम अगर compare करें, right? Last season we were struggling with some of the players availability, our key players, right? Availability, और हमारा पूरा 11, right? Consistent team नहीं था throughout the season. So those are the challenges. But ये season में बहुत अच्छा क्या हुआ, right? It's the addition of Venki, right? It has helped. Then some of our key players like Harman Paji, right? Availability throughout the season. Then Atif playing for entire season, and few of the other players, right? So at least हमारे पास एक core team था जो 6-7 लोगों का जो पूरा 15 से ज़्यादा 16 मैच खेले हैं और they have performed well. वो एक है और थोड़ा एक डिसिप्लिन, लाइक हम लोग टाइम पे आए, थोड़ा हम लोग मैच से पहले थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ा बहुत और कैचिंग वो सब प्रैक्टिस करें, दैट हेल्प्स अ लॉट टू सर्टेन एक्सटेंट। वो सब हम लोग थोड़ा चेंज किए इस साल, विच वर्कड आउट फॉर अस। और थोड़ा बैटिंग का भी हम लोग नो इनिशियली वी स्ट्रगल टू, बिकॉज ये नया साल था मेरे लिए कैप्टेंसी का, राइट? इनिशियली फॉर फ्यू मैचेस कहाँ कौन कहाँ बैटिंग करेगा वो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हुआ, बट आफ्टर आई थिंक 3-4 मैचेस we all realized, right, who should bat where, right? So I had a good chats with Harman Paji, Venki, the senior folks, right? And we decided who will bat where for the season, apart from few exceptions, right? So वो हमारे लिए अच्छा गया। और जो ये सीजन में हरमन पाजी, आतिफ ने ओपनिंग स्पेल्स में हमें मोस्ट ऑफ द मैचेस वी वॉन बिकॉज ऑफ द bowlers, right? And then Venki coming into मिडिल ओवर्स एंड टेकिंग विकेट्स और गिविंग अस विकेट्स, राइट? ये बॉलर ने बहुत ही मैच हमें हमें जिताया है, राइट? रादर देन बैटिंग, आई वुड से। बट यस, ओवरऑल हमारे लिए यही सब चेंजेस पाजी, आई थिंक इट हैज हेल्प्ड। On the good side, Deva Bhai, यस this year for यस start, यस यस, गुड साइड। नंबर 3 से 2 पे आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर 1। Yes, that's our goal, Paji. But yeah, it all depends, right, how we are playing next season. Again, to be number one, right, you need to play consistently for all the games, because any team in this league, you can win or we can lose, right? So we have seen this time also, right? How we lost a game to Balam, and that has changed the entire equation, right? So yeah, so every match is important. So we have to play consistently and throughout the season. So hopefully, Paji, yeah, next season our goal is to be number one. Hopefully, मेरे भाई, hopefully there's a new champion next year, because Yeah. 2025, we all already know. I've spoken to all of you. Dada's spoken to you. Shashi, everybody's spoken to you. There'll be a new structure from 2025 onwards. दादा, आपका क्या ख्याल है? लास्ट ईयर से इस साल क्या चेंज दिखा? सबसे बड़ा चेंज आपको क्या दिखा है परफॉर्मेंस वाइज? Performance wise, I think I think we started it last year, and I think we are getting the results. And that's your brainchild, your baby, which is the SWPL. I think that has really this year, from last year onwards, it started. By I think this year, people were practicing hard to come and play for those matches as well. I've been owner of that one team, and they were being the my vice captain for that team. I can tell one thing, that yes, we were the champion, but there was some hard effort went in to become that champion. Because if I revisit, Paji, I think you are not aware of it as well, and I can put it in this TV as an exclusive for you, Paji. I know people will start a point to discuss. Deva and Ani, who was both were there in my team, right? So they were not getting a chance to do net practice because it was difficult for them to come to our stains to do those net practice. So as a team, we had a mini net session at our place in the which is near to Deva's and Ani's place. So we did all those things.
Yeah, so I think the practice, I think everybody has given, every one of us I think has given more emphasis on the practice, pre-season practice, and that has helped us in all the three teams, I think. दादा अभी में कट ऑफ हो गए थे, बट द पॉइंट इज अक्रॉस कि प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्लेयरों को चांस मिलना चाहिए जो नहीं आ सकते हैं. us as a players, us as a club captains, us as a club executives, us as a SWCC captains and senior players, find a way to give them an opportunity. मेन बात ये होती है, राइट? तो अभी आई थिंक लगता है कन्ना दादा लो वो कनेक्शन लूज हो गया उनका. Yeah, I think अभी he's दादा connecting back. Yeah, he's joining अभी back. दादा वापस आएंगे. तो देव भाई आपके पास आएंगे. इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड ऑफ क्रिक चैट विद करुण विद SWCC कि हम कभी साला कंप्यूटर नहीं सही चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट यू नो इट्स गुड थिंग टू गेट. क्रिकेट में भी ये होता है, टू गेट योर वर्स्ट आउट ऑफ द वे. जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हिकअप्स आते हैं आपको क्रिकेट में, लाइफ में, हर जगह पे, गेट देम आउट ऑफ द वे फर्स्ट. तो देवा भाई, आपने इस बार ऐसा क्या देखा इस सीजन में जो आपने लास्ट ईयर के हिकअप्स देखे थे, लास्ट ईयर के रोड ब्लॉक्स देखे थे? एज अ कैप्टन यू सेड लेट मी गो पास दैट फर्स्ट. तो मैं अब ये करूंगा कि मैं नंबर 2 पे लेके जाऊंगा, नंबर 1 पे लेके जाऊंगा. आपने क्या ऐसा प्लान किया? The first thing है पाजी, right? टीम हमारा लास्ट सीजन पे आप देखे हो खुद, राइट? वी हैव फोरफिटेड टॉस ट्वाइस, राइट? लोग 1 बजे मैच है, कोई 1 बजे आता था, कोई 12:30 बजे, या कोई 1:15 को आता था, राइट? डायरेक्ट आते इंक्लूडिंग थे मी. और या मैदान ग्राउंड में चले जाते थे खेलने, राइट? So whatever game we play, right, or what format it is, right, it's a basic thing is, right, हम लोग आधा घंटा पहले एटलीस्ट पहुंचे, उधर टीम से मिले, राइट, थोड़ा डिस्कशन करे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी गेट फ्रॉम दोस काइंड ऑफ डिस्कशंस, राइट, और व्यूज और आइडियाज, और हमारा बॉडी भी यूज टू होता है वो एनवायरनमेंट में. सो वो मैंने पहले ट्राई किया फिक्स करने के लिए. एटलीस्ट I tried to ask people to come by 11:30, but yeah, at least most of them were there by 12:15, right? I know if I say 11:30, our guys follow Indian time, which will come by 12, 12:15. So that is something we fixed. Once we everyone reaches the ground, at least we do some sort of those exercise or practice. So that has helped a lot, Paji. Within, and there are a lot of discussion also. It allowed to have a lot of discussion based on the weather, pitch, and all, right, what we should do, and all those kind of talks, right, and actually helped, Paji. So that is the first thing. When I took over as a captain, I thought this is what we need to change if we wanted to really, be on the top two of the table. So yeah. ये बहुत बढ़िया है यार. दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स, टू बी ऑन द ग्राउंड एट टाइम. आगे थोड़ा वार्म अप करो, सब कुछ करो. जैसे हम सब, अ लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग आईटी जॉब्स, डेस्क जॉब्स, तो इतना प्रैक्टिस नहीं हो पाता है. तो ग्राउंड में जब आके थोड़ा बॉलिंग करोगे, थोड़ा बैटिंग करोगे, थ्रो डाउन्स करोगे, तो उससे आपको थोड़ा बॉडी गेट इट बैक टू द ग्रूव कि हमने मैच खेलना है, रन बनाने हैं, विकेट लेनी है. दादा आपका भी सेम चीज था, सेम प्लानिंग था आपका, या आपका क्या डिफरेंट प्लानिंग था? दादा डिस्कनेक्ट हो गए सर. दादा ड्रॉप अगेन. चलो कोई बात नहीं, डिफिकल्टी होती है, क्रिकेट में भी होती है, टीवी शोज में भी होती है, लाइफ में होता है पाजी. लाइफ में होता है पाजी. यस यस. अभी इंटरनेट का कनेक्शन का दादा का वो प्रॉब्लम चल रहा है. तो देव भाई आपके पास दोबारा आएंगे. एक और सवाल आपसे लेंगे कि एक हमारे टीम मेंबर ने एक सवाल पूछा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि can you give a context around the most difficult situation taken on the ground, and if it was a success or failure? If given a chance, how different will their decision be, like your decision will be? कुछ ऐसा मौका आया था कि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ा कि गेम इधर की उधर हो सकती है? यस पाजी, आई रिमेम्बर. आई थिंक एक गेम था हमारा, हम स्पेंसर के साथ खेल रहे थे, सेकंड गेम, राइट? सो वेयर वी आर ऑल आउट इन 77.
So everybody was down, right? What to do and how to do. Then every time for Spartans, right, Harman Paji opens the bowling, right, starts the bowling. बट पता नहीं उस दिन हमारा डिस्कशन और हमने इमीडिएट डिसाइड किए कि नहीं चलो हम आतिफ से स्टार्ट करते हैं, राइट. And he it was actually successful. We were very close to win the match, and we took almost 9 wicket. Yeah, we unfortunately we lost by 1 wicket, but that is the excellent spell he has bowled by taking 5 wickets and reaching us close to the victory. So वो decision थोड़ा हम लिए थे जहाँ की हमारे success पे गया था पाजी, changing the bowling between Harman Paji and Atif. अगर दोबारा मौका मिले कि थोड़ा चेंज करते हैं, यू कुड गो बैक इन टाइम, तो कुछ डिफरेंट करोगे? उसी मैच का और दूसरा मैच का उसी एनीथिंग, राइट? डिसीजन का कुछ डिफरेंट करोगे, एंड यू और वुड यू स्टिक बाय योर डिसीजन? No, उस मैच में वो डिसीजन सही था पाजी. I will stick to the decision, but yes, I could have done few things. After the match, I thought about it is the player which actually scored some winning runs, right? He was playing only on the mid off and mid on range, so I could have put an extra fielder on the mid on to stop the single for him, because he took a last ball single and then he went to hit, right. And what I did was, the long on I brought into mid on, and he just wait for a four, right. So I would have kept two fielders, one in mid on and one in long on, to protect those kind of things. Yeah, that I could have done it. चलो अगला साल है, सीखेंगे. Yes. If you stick by decision, I personally as a captain, I've always been like stick by your decisions. जीतेंगे तो तालियां कम मिलती हैं, लेकिन हारोगे तो गालियां ज्यादा मिलती हैं. Yeah, because हमेशा से ही yeah, in cricket, एक yeah, 11 player plays and every individual have their own thought process, right. And you cannot implement all 11 at one point of time, right. So you need to listen to everyone, but you have to do what you feel it as a captain, right. Yeah. एब्सोल्युटली मेरे भाई, और 100% बहुत अच्छा काम किया आपने कप्तानी में. It's not easy, and I'll tell you, as an ex-captain of Spartans, one of the difficult team, probably the most difficult team to captain. Or I'm telling you, you have done an amazing job. आगे और बहुत अच्छा Thank you, करना मेरा Bhaji. भाई. चैंपियनशिप नेक्स्ट है. Yeah, अब यही सवाल दादा वापस आ गए, दादा से पूछेंगे. दादा, कैन यू गिव अ कॉन्टेक्स्ट अराउंड द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन टेकन ऑन द ग्राउंड, and if it was a success or failure? If given a chance, how different will you go about it? Paji, I I don't go in going into the what decision I have taken. I think I always believe with the instinct that that was the right time and taking the right decision. And if you ask me, maybe a match against Plowman, first match, that's our match actually, and I think we lost it because of a batting order. I think our batting order would have been different. So that's the only one thing, and which we actually rectified in the later matches. So we had actually a constant batting lineup going into the same positions, and that has given all the results. If you see in our last few matches, we have won all the matches, right? We have even beaten the number two and number one, who is the current number one and two. Number one, we just lost it by 9 runs, and it was all because of those things. So I think that was the only match which would have really, it was our match, and we lost it because of the batting order. We could have done something different there. लेकिन क्या हुआ था बैटिंग ऑर्डर में? व्हाट डू यू मीन द बैटिंग ऑर्डर? आप थोड़ा डिटेल में बताएं. आप यू आर स्पीकिंग हाई लेवल स्टफ, गिव अस लो लेवल स्टफ. कि आप डिटेल तो में भूल बताएं भी डाल रहे हो पाजी, ऐसा तो अच्छा नहीं है ना ऐसा. आप किसको भेज दिया, किसको नहीं भेज सकते थे, क्या हुआ? ये सब that is gone, isn't it? So actually क्या हुआ, I think all our hard hitting or people who can score more runs quickly went in the top 3 and 4, and somehow that didn't work. And after that, the pressure was on the other batsmen who can only go and get some time to build their innings. And that time the opponent was totally on top of their thing, because
the runs were not coming, and then when the pressure was on, the people went to go for some shots, they got out. So I think if you would have done a proper, a steady batting lineup with a combination of the hard hitters coming in between rather than one after another in the top 4, could have done the trick. आप जितना भी गूगली डालोगे नाम तो नहीं बोलेंगे पाजी. मेरा सवाल है नाम निकालना, आपका सवाल है जवाब देना. लेकिन पाजी एक चीज है, आज I'll admit कि मेरी थोड़ी गलती थी. मैंने लास्ट मिनट पे बिलीव किया इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं यूज करता हूँ, लेकिन अभी अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, सब कुछ पुराना जैसा आ गया है वापस. थैंक यू टू ऑल दीज 2 गाइस जिन्होंने मेरा हेल्प किया टू ब्रिंग इट बैक टू. यही एक ब्यूटी है टू बीइंग एन आईटी डोमिनेंट क्लब कि आप कुछ भी ठीक कर सकते हो, कुछ भी आप फिक्स कर सकते हो, इन यू कुड गो बैक टू नॉर्मल. आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, मैं सरप्राइज को भी लेके आऊंगा और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये सरप्राइज है. इसको थोड़ा और सवाल थे, लेकिन आप दोनों के साथ डेफिनेटली एक और एपिसोड करेंगे. बहुत मजा आया आज. अगेन सॉरी, थोड़ा अप एंड डाउन हो गया, लेकिन इस सरप्राइज को मैं लेके आना चाहूंगा. इस सरप्राइज के लिए आपके पास कुछ सवाल हैं. आर यू गाइस रेडी फॉर दिस सरप्राइज? या रेडी. ये बैक स्टेज में बैठ के सवाल सुन रहा है, आपके जवाब सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है. Okay. आप तैयार हो? Yeah, it depends on what kind of question we are getting. So let's see. लेकिन अब एक चीज मैं बोलूंगा, आप जो भी सवाल होंगे हिंदी में जवाब देना है आपको. ये बंदा हिंदी में सवाल पूछेगा, जवाब हिंदी में ही चाहिए हमें. Okay. अरे Swcc. अजी ओके, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं सोचा कि अभी कोई करंट जो भी है वो सेटअप में लेके आएंगे, बट सुशांत को तो मैं म्यूट पे जी. तुम म्यूट में है भाई. म्यूट यू आर ऑन म्यूट म्यूट में है भाई. अरे सॉरी, एक दोस्त आया था इसलिए. ओके. अरे कन्नड़ भाई नमस्ते. कैसे हो कन्नड़ भाई? नमस्ते शशि भाई. अभी आपका शो है ये तो आपके सामने दो नहीं, मैं देवा से क्या पूछूं, वो तो अपना तो पूरा खेल तो उधर से ही स्टार्ट हुआ था देवा के साथ. वी स्टार्टेड इन सेम कॉलेज बाजी. आपको पता है ना, हम एक ही कॉलेज से हैं, देवा और मैं. हम लोग दोनों सेम कॉलेज से है और यूनिवर्सिटी मैचेस के लिए तो वी हैव बीन सेम कॉलेज. और पहला 2 साल हमारा आई थिंक सेम सेक्शन भी था. ओके. उसके बाद अलग हुआ और उसके बाद हम बेंगलोर में सेम एक साथ भी रुके थे. सब ऑलमोस्ट आई थिंक 2003 से अभी तक 20 साल का जर्नी है. ऑलमोस्ट साल तक बैठे जाते हो क्या? 20 साल हो गया. 20 साल हो गया पाजी हमारा. 20 इयर्स. अरे बढ़िया भाई, आप आ जाओ वापस. दादा को कब से कह रहा हूँ. और नहीं और कन्नड़ भाई, आई थिंक कन्नड़ भाई, अनुजन भाई, दे ऑल गिवन मी चांस करेक्ट इन पास्ट. ओके. तो उनको तो मैं भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जब मैं इनिशियल गया था लंदन तो बेसिकली तब कॉग्निजेंट का ओनली 1 टीम था. ओके. तो हम बेसिकली वो लोग मेरे को चांस दिए थे. अनुजन, कन्नड़ भाई सब. अनुजन भी एक थे. अब पता नहीं अनुजन कहाँ खेलते हैं आजकल, कन्नड़ भाई को पता होगा. ओके. तो वो लोग चांस दिए थे, तो उनको भी तो नहीं भूल पाऊंगा. ओके. तो आपने पूछा क्वेश्चन पूछने के लिए, मैं क्या पूछूं अभी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, मैं पूछ देता हूँ. तो आपका शो है अभी मेरे भाई, आपका शो है. तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन टू देवा. आई थिंक मेनी पीपल डोंट नो एक्चुअली देवा को ज्यादा स्क्वायर कोट पसंद होता है. कॉलेज के टाइम से वो ज्यादा स्क्वायर कोट खेलता था. ओके. सभी शॉट खेलता था, लेकिन ज्यादा आप कोई भी बॉलिंग करो वो उसका फेवरेट शॉट था स्क्वायर कट. थोड़ा भी ऑप्टिक के बाहर आएगा वो स्क्वायर कट मारेगा. और हमारे कॉलेज के टाइम में बात करता हूँ, तभी वो स्क्वायर कट में भी 6 भी मारता था. आजकल पता नहीं. ओके. मैं तो देखा नहीं 4 साल से उसके खेल. ओके. तो अभी मैं पूछता हूँ, उसका अभी भी स्क्वायर कट कंटिन्यू है या नहीं है ना? उसने खेल चेंज कर दिया है कैप्टनसी, क्योंकि वो ज्यादा अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया थोड़ा, क्योंकि स्क्वायर कट थोड़ा हमेशा रिस्की होता है. करेक्ट. अगर आपका हो गया तो हो गया, नहीं तो डायरेक्ट प्लेयर के पास चला जाएगा. तो पहला क्वेश्चन ये है. और दूसरा क्वेश्चन मेरा है. अरे पहला सवाल हाँ, पहले बताओ पहले. तो अभी भी मैं स्क्वायर कोट खेलता हूँ और वही मेरा स्कोरिंग एरिया है.
ठीक है, तो करेक्ट। उसमें मैं आउट भी होता हूँ, 2-3 बार इस सीजन में आउट हुआ हूँ। और ये लास्ट मैच में मैं देखा, शशि भाई को अच्छे से पता है कि देवा का स्कोरिंग एरिया यही है, तो शशि भाई क्या करता है, गली, पॉइंट, डीप, जितना भी फील्डर है ना, 4 फील्डर उसी जगह पे रख देते हैं, ठीक है। तो मुझे पता था कि जब लास्ट मैच है तो वो शशि भाई वही करेंगे। तो मेरा माइंडसेट में गया था, मैं उस एरिया में खेलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक SWPL में, राइट, एक सेकंड मैच में मैं आउट हुआ था कि स्क्वायर कट मार के, राइट, आई वाज इनटू ट्रैप कि मेरे को वही बॉल डाला है और उधर ही फील्डर के आउट कर दिया। तो मैं अभी इसमें हार्डली मैंने 4-5 रन बनाया होगा स्क्वायर में, मतलब पॉइंट उस एरिया में, गली पॉइंट में। मैं मैक्सिमम शॉट मैंने सीधा खेला था, मतलब उस कवर और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ उसी साइड में खेल के मैंने रन बनाया। तो मैंने चेंज कर दिया अपना बैटिंग स्टाइल, क्योंकि मुझे पता है कि शशि भाई का प्लान क्या होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी करंट टीम में, दोनों टीम में, आपका और कन्नड़ भाई का, दोनों टीम में कौन सबसे अच्छा स्कोर कार्ड खेलता है? अभी हमारा 3 टीम हो गया बेसिकली, अभी 3 टीम हो गया, कन्नड़ दा का तीन एक टीम, और चलो तीन हमारा टीम, 3 क्योंकि टीम, राइट। देखो मैं जब था तो हमारा जब मैं तो 2018 के बाद आ गया, तब तो उस टाइम मैंने हार्डली 7-8 जन को जानता हूँ, अभी भी जो जितने जो लोग खेलते हैं, उसके बाद तो सब नए बंदे हैं। फिर भी आप बताओ कौन अभी थोड़ा ज्यादा अच्छा खेलता है स्कोर कार्ड मैं अगर बोला जाएगा, मैं आपके हिसाब हार्डली से? देखा हूँ, आपके हाँ हाँ, हिसाब से बहुत कम लोग स्क्वायर कट मारते हैं, और उसमें मैं जितना देखा हूँ अच्छा मारते हैं शशि भाई। जब वो कनेक्ट करते हैं, ही हिट हार्ट्स, वो पॉइंट में बहुत हार्डली मारते हैं, एक शशि भाई। और एक रूडी है, जो वो भी पॉइंट में उसको मिलता है, तो रूडी भी मारता है, ही इज गुड एट ओके। कट। लेकिन मेरे को लगता था शशि भाई हमेशा वो बेस्ट है, वो जो ऑन द राइज खेलने में, ओके, यस, पॉइंट पे वो खेलते हैं। अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, वो तो उनका क्योंकि स्कोरिंग जोन है। हाँ, क्योंकि मेरा हाँ पास्ट टेस्ट में जब भी, भाई, ये सवाल आपके लिए भी है। ये सवाल सिर्फ देवा भाई से नहीं, वो सुशी भाई दोनों से पूछ रहा है। हाँ। ना उनकी उसके बाद कन्नड़ भाई एक के बाद एक बताएंगे ना, एक के बाद सच। उनकी अलग कन्नड़ भाई सवाल है। के लिए, अच्छा, कन्नड़ भाई के लिए मेरा थोड़ा अलग सा सवाल है, क्योंकि वो हमारे हमारे टाइम जैसा खेलते थे ना, उस बेसिस में सवाल है मेरा। ओके, उनका फेवरेट क्या है उस बेसिस में बताऊंगा। ओके। ओके। और सबसे अभी देवा, तुम्हारे हिसाब से अभी सबसे जो कंसिस्टेंट बॉलर कौन है? अभी it's between Karthik and Harman Paji. They both are very consistent. Karthik and Harman Paji. Karthik in strikers and Harman Paji in Spartans. They are very consistent. And इस बार इनविंसिबल में नया बंदा आया है, निशांत, मतलब जो कि स्ट्राइकर में खेलता था, अभी इस बार खेला, और he is become very consistent in invincible. So these are the 3 are more consistent bowlers. मेरा पाजी देवा के लिए अभी लास्ट क्वेश्चन है। देवा, एक बात बताओ, मेरे को पता है तुम 2 घंटा ट्रैवल करते हो, करेक्ट, तुम जहाँ रहते हो खेलने के लिए। तो बेसिकली ये टीम में जो ये माहौल है, इसमें क्या मोटिवेट करता है तुमको 2 घंटा ट्रैवल अप एंड डाउन करने के लिए? 2 आवर्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स, करेक्ट। मैं तेरे साथ जितना बात किया हूँ तो उतना तो टाइम लगता है, तू मेरे को बोलता है हमेशा, करेक्ट। हाँ हाँ, अभी भी लगता है। अभी थोड़ा थोड़ा मैचेस जो लंदन में होता है, तो वो 1.5 आवर लगता है। बट आई नेवर नो, वो बॉन्डिंग इस SWC से बन गया, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट यू आर द वन हु इंट्रोड्यूस मी टू दिस क्लब, राइट। ना, और मैं ओनली टू शशि जी, हाँ, तो शशि जी, ओके। हाँ, तो बट हाँ, मतलब थ्रू शशि भाई, आई केम टू दिस क्लब, राइट। और धीरे धीरे, I don't know how this bonding has happened. Now I'm close to many of these guys, whether it in Spartans, strikers, or invincible, right? So teams are not that much matter to me where I am playing. So I can play any day at any team. वो ऐसा bonding बन गया. Maybe we are all, because there are all Indian guys are there, right? I don't know. मेरा बॉन्डिंग ऐसा हो गया, अभी मैं 2 घंटे ट्रैवल करता हूँ, मैं तो मुझे मैं लगता है कि मैं इधर खेलूं। मैं क्यों क्वेश्चन पूछा देवा, क्योंकि मैं भी कभी कभार खेलने जाता था। कौन बुलाता था, ये रितेश है ना अपना, और एक दोस्त रितेश, करुण भाई, आपको पता नहीं होगा, हमारा और एक दोस्त है रितेश, ओके। तो कन्नड़ भाई देखे हैं उसको, हमारे साथ 1-2 मैच खेला है। वो कभी कभार मेरे को बुलाता था, तो मेरे को 1-2 घंटा ट्रैवल करने में थोड़ा मेरे को लगता है इतना दूर जाके खेलना है क्या, 2 घंटा जाओ 2 घंटा आओ। एक्चुअली एक तो कुछ तो मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए, करेक्ट। आपको 2 आवर्स ट्रेन में जाओ, फिर से 2 आवर्स ट्रेन में आओ, तो इसलिए मैं पूछा था।
भाई पहले तो मुझे लगा, मैं जब करुण भाई से के साथ खेल रहा था राइट स्पार्टन्स में, तो यार मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ राइट, वो एक मोटिवेशन था। वहां से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ठीक है। देन वो प्लेयर्स मुझे सब अच्छे लगे, और हम लोग ना खेलते हैं फॉर विनिंग, बिकॉज मैं पहले जितने भी क्लब में खेला हूँ यहाँ पे लंदन में राइट, आई प्लेड विथ 2 टीम्स बिफोर आई जॉइन SWCC। तो उस टीम में से ना उनका जीतने का इंथू नहीं था, और मोटिव ये नहीं था, मतलब दे आर नॉट प्लेइंग टू विन। बट व्हेन आई कम टू दिस क्लब राइट, एवरीबॉडी हु इज इन द ग्राउंड राइट, सब लोग का वो था कि हम कैसे मैच जीतना है, और कॉम्पिटिटिव से खेलते थे। तभी मुझे अच्छा लगा कि यार ये लोग कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं, और भले ही मैं 2 घंटा ट्रैवल करूं, इट इज वर्थ ऑफ ट्रैवलिंग टू प्ले ए कॉम्पिटिटिव गेम। तो वो मुझे अच्छा था, और मुझे अपना चांसेस मिल रहा था। मुझे भले ही मैं बैटिंग करूं बॉलिंग करूं, मुझे कोई कुछ मना नहीं करता था। तो मैं बोला पाजी को कि पाजी मैं कीपिंग करूंगा, पाजी ने मना नहीं किया, वो भी मिला राइट। सो मेरे को जो भी चाहिए राइट, ये क्लब में मुझे कोई मना नहीं करता है, और सब लोग सपोर्ट करते हैं इस क्लब में। जब मैं कैप्टन बना और 2 मैच हम लोग हार गए इस बार, it's not all the executive committee has supported me, backed me, whether it is Shashi bhai, Kanad dada, Karun paji, I got lot of support from all these boys. Apart from, there are players from strikers also, they called me and they supported me. they भाई ये कुछ नहीं है, चलो 2 मैच है, आगे तुम्हारा अच्छा होगा, तुम ये वो करो, don't worry about all this. So I got that support or right from this team. I don't think anywhere in any other club I will be get supported. करेक्ट, आई That's the एग्री। motivation. जब तक इवन मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो मैं पाजी को हमेशा बोल चुका हूँ, मेरे को पता नहीं था, तुम जो पॉइंट बोला है सेम पॉइंट मैं भी एग्री करता हूँ। मेरे को पता नहीं था जब मैं पाजी के साथ पहली बार मिला, जैसे हमने एक हमारा ट्रेनिंग था इंटरनल, जो हमारा स्टेन्स क्लब का होता था। तो पाजी ने ऐसे बातचीत में, बाद में मेरे को पाजी ने खुद बोला कि 1 साल के बाद मैं कनाडा टीम के लिए खेल चुका था। तब तक पाजी और मेरा बॉन्डिंग थोड़ा अच्छा हो गया था। ओके, पाजी पाजी को और भी याद होगा। पाजी पा, आप, पा, मैं जब यहाँ पे नहीं खेलता था राइट, तो सुशांत मेरे को बोल रहा था कि हम मैं तब दूसरा, मैं हार्टफोर्डशायर लीग खेल रहा था, एक फ्लामस्टेड करके क्लब है उसके लिए। तो सर हम जब मिलते थे ना, सुशांत मुझे बोलता था कि हमारा क्लब में एक कनाडा इंटरनेशनल प्लेयर है, पाजी ऐसे खेलते वैसे खेलते, ये बोलते वो बोलते हैं। बोला अच्छा है यार, बढ़िया है, चलो देखते हैं। मौका मिल गया और मैं भी खेल लिया। क्योंकि मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ था, क्योंकि मेरे को याद है, आपने अभी नाम लिया हार्टफोर्डशायर लीग, उस एरिया में मैं नेटवर्थ क्रिकेट क्लब को कोच भी करता था उस टाइम पे। निबर्थ, ओके, निबर्थ, नेटवर्थ निबर्थ राइट। ओके नेटवर्थ ओके उनको ओके। कोच करता था, जब मैं स्टेन्स को भी कोच कर रहा था, वहां पे भी कोचिंग कराने जाता था। अब बात हुई 2 घंटे ट्रेवल की, 1.5 पौना 2 घंटा ट्रेवल करके कोचिंग कराने जाता था। That was also for 1.5 hour for me, Paji, traveling 45 minutes in tube and then somebody picks me 45 minutes से drive. So वो भी 1.5 घंटा का था, तो मुझे लगा यार इधर मैं खेल लूं राइट। सुशी भाई, बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन चल रही है, साल लगता है 15-20 एपिसोड बनाने पड़ेंगे। मेरा उसका पार्ट तो कन्नड़ में क्वेश्चन पूछूं या नहीं पूछूं? दादा के ऊपर जाओ, दादा का भी सुनना है मेरे को, जो सवाल रखे हो दादा के लिए। दादा के लिए मेरा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सबसे इजी क्वेश्चन है, दादा का अभी कीपिंग कैसा चल रहा है? कीपिंग छोड़ दिए, कीपिंग से रिटायर्ड हो गया हूँ भाई सुशी। ओके। तो अभी टीम में, जैसे आपको दादा याद होगा, हम जब खेलते थे, जो हमारा फ्रेंडली में जो भी, तो हमारा कोई भी कीपर नहीं होता था, करेक्ट? तो आप मैं सब मैनेज करते थे। तो अभी जैसे हमारा कोई कीपर हुआ और हम, या जयराम एडजस्ट कर रहा है। तू ऐसे कमेंट्स डाल रहा है यार। जयराम इस बार अच्छा कीपिंग किया एक्चुअली, and he is giving coaching lessons at least in talks, not I have not seen it कि ऐसा दिखा रहा है, but बात करने में नया 2-3 बंदे लोग आए, तो इन लोगों को दे रहा है ट्रेनिंग। बट यस, इस बार हम लोग का कीपिंग थोड़ा वीक पॉइंट था, बट या अभी तो मैं कीपिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछना था पाजी, मेरा एक रीजन है कि मैक्सिमम हम जो हमारा जो क्लब का है ना, मैक्सिमम सब लोग सब लोग बैटिंग और बॉलिंग में फोकस करते हैं, करेक्ट? जो भी आता है, कीपिंग हो गया तो हो गया, क्योंकि आप थोड़ा कीपिंग बैकग्राउंड से हो, इसलिए मैं आपको कीपिंग रिलेटेड पूछा। और एक क्वेश्चन है आपका, जो ओरिजिनल स्किल रिलेटेड,
आपके हिसाब से अभी कौन सा करंट अच्छा स्पिनर है, लेग स्पिनर? कहाँ पे? हम लोग के क्लब में हाँ, हम लोग के क्लब में। in the spinner, I think I cannot treat it as a leg spinner, but I think the best spinner is Venki. He's having now has his dusra as well, so I think he's bowling dusra as well, and it's quite consistent. He can tell that I'm bowling this dusra, so like that, and he is really doing good. क्योंकि इसका भी कारण है, क्योंकि आप लेग स्पिन खुद करते थे, पता है आपको? अरे इस याद बार है ना? दादा बॉलर हो गए, अभी दादा बॉलर हो गए। इस बार विकेट भी मिला है भाई। हाँ, पता है Bowler. तो मैं अभी भी सपोर्ट करता है, तो या आई गॉट सम विकेट्स एज वेल सुशील दिस टाइम। ओह ग्रेट दादा। मैं अभी तक लोगों से बात करता हूँ, कोई बोलता है दादा ऑफ स्पिनर है, दादा मेरे से ऑफ स्पिन की एडवाइस लेता नहीं है। नहीं, दादा आजकल शायद बन गए हो गए, पहले लेग स्पिन ही स्टार्ट ट्राई करते थे हमारे साथ, पूछो दादा को। या करेक्ट लेग स्पिन करते थे, क्योंकि दादा और जब हम एक ही टीम में खेलते थे तो हमारा कोई कीपर नहीं होता था, तो मैं पहले कीपिंग कर दूंगा, उसके बाद दादा को कीपिंग करवा दूंगा, और मैं खुद उसके बाद बॉलिंग चलाता हूँ। तुम साला सब किए हो, कीपिंग करे हो। नहीं बाजी कोई नहीं था, पाजी दादा को पूछो। कीपिंग करना उधर से सीखे हम लोग। तो दादा कीपर है। हाँ, हम दोनों सीखे ऐसे। करेक्ट। पाजी आप देवा को पूछो, जब हम यूनिवर्सिटी फाइनल खेल रहे थे तो हमारा कोई कीपर नहीं था, तो मैं पहले बॉलिंग कर, देवा उस टाइम पहले कीपिंग करेगा 8 ओवर, मैं उसी 8 ओवर में मेरा 4 ओवर बॉलिंग कर दूंगा, उसके बाद मैं कीपिंग कर दूंगा। देवा, मैं और हमारा कैप्टन था, हम 3 लोग मिलकर कीपिंग करते थे, कोई कीपर रखे नहीं थे, क्योंकि जो हमारा कीपर था ना वो बाई में 15-20 रन देता था हमेशा। चलो गाइस, आई थिंक वी आर गोइंग वे ओवर आवर टाइम नाउ। अगेन इट्स बीन अमेजिंग चैट, और एक बड़े एपिसोड करेंगे, बहुत ऑफ सीजन है हमारे पास, many conversations. I would like to get a closing statement from all you guys, and I'll start with Dada first. Yeah. So I think Paji, first of all, ये तो पहला वाला था show, the 2023 का, and your show in lockdown during the COVID time was really means everyone was looking forward to those moments, and आज जो आपने सरप्राइज दी हो ना, सही में बोल रहा हूँ, आई डिडंट एंटिसिपेट दैट यू वुड हैव ब्रिंग सुशी इनटू दिस एज अ सरप्राइज पैक। जब आप बोल रहे थे ना हिंदी में पूछेगा, तब भी मैं सोचा था कौन होगा, बट आई डिडंट। इट वाज ए रियल सरप्राइज, and it's really good to see Sushi. He is always close to all of our heart, I think, because thank you Dada. Yeah, very close to me, very close to me, very close to my heart, and I have never seen such a committed individual and an honest individual on the ground playing the game of cricket. मैंने देखा नहीं। अब सबके साथ खेला हूं मैं, बट उसके जैसा मैं अभी तक देखा नहीं। तो लेके आओ इसको वापस इंग्लैंड। So ये मेरा हाथ में नहीं है, because मैं जब जा रहा था तब भी पूछा था, उसके बाद भी मैंने पूछा, but I think he's a gem of a guy. He follows his heart, so I will wait for his call rather than I am telling something to him. So always, Dada, I know you're always supporting everybody, and that's the beauty about it. The club is one club, one family. Deva bhai, पाजी स्टेन्स में एक can you bring him back? स्टेन्स में एक लेजर शटर था, एक पॉइंट, छोटा सा थोड़ा सा ग्राउंड था, उसमें टेनिस बॉल मैचेस होता था आफ्टर द इवनिंग टाइम्स। उधर जाके मैं सुशी को देखा कि वो बॉलिंग कर रहा था टेनिस बॉल से। मैं बोल रहा, तू टेनिस बॉल से क्या कर रहा है, तू लेदर बॉल से नहीं खेल सकता, कोई चांस नहीं देता है कि आजा भाई हम लोग के साथ खेल। So that's how I came to know about Sushi playing tennis ball in Staines. Yeah, and then we started playing leather. हाँ, वो वाला काम हम लोग देखे, तब से हम लोग लेदर बॉल खेलना चालू किया। लेग साइड खेलते थे हम, पता है, आनंद के साथ। Only leg side. आनंद के साथ। That's it. पाजी पाजी मैं आपको बोला था, सॉरी मेरा बैटरी पूरा ड्रेन आउट हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहे हो सुशी भाई? पहले क्लोजिंग में दे रहा हूँ पाजी। एक ही चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी पाजी। आपने जो कमिटमेंट किया था ऑन 2018, ओके, आपने एक कमिटमेंट किया था, उसके बाद हम जितने भी हमारे दोस्त थे सराउंडिंग, स्पेशली शशि भाई, अपना कार्तिक, कन्नड़ भाई, सब जो आपको हेल्प किए शशि भाई के थ्रू, सराउंडिंग जितने भी हमारे थे, जयराम था, नितिन थे, सब थे, करेक्ट, वो सब हमारे जो
पुराने जितने भी थे, पिनाकी भाई, सुदीप भाई, जो हम जैसे मैं तो आ गया, करेक्ट, आप लोग, मैं आ गया, लेकिन उन लोगों जैसे अपना एक सराउंडिंग एक टीम बना, आई थिंक इट्स ए बिग चैलेंज टू, आई थिंक इट्स ए लेसन, करेक्ट, इट्स वी टॉट ए बिग लेसन टू दिस टेंस क्लब, ओके, करेक्ट। तो मैं जब भी देखता हूँ ना, मैं बहुत ही रियली इंस्पायर्ड होता हूँ, ओके। मैं कभी सोचा नहीं था हम इतने हम आगे जाएंगे, करेक्ट, फ्रैंकली विद इन स्पैन ऑफ 3 or 4 years, करेक्ट, हमने अभी हम 3 टीम खिला रहे हैं, करेक्ट। I was never expected. I thought, okay, 1 or 2 we can manage. 3 team is very difficult, Paji. Even Stains Club, it was difficult for Stains Club also to field 3 team every time. कनाडा को पता है, करेक्ट, वो लोग कॉल जाता था, 14 कॉल ऑफ होता था, सब होता था, करेक्ट। तो पाजी स्पेशल थैंक यू, आपने जितना मेरे को मेंटरिंग किया था, मैं हमेशा सभी कॉल में बोलता हूँ, फिर से और एक बार आपको दिल से थैंक यू। शशि भाई, अब कृपा रही ऊपर वाली की तो और अच्छी न्यूज और देंगे। मेरे को देवा को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, वो अपना चलता रहता है, ओके, देवा और मेरा चलता रहता है, ओके। देवा भाई के पास जाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। पाजी मेरा 1% चार्ज है, मैं रुकता हूँ, ओके, मैं घर जाना है। थैंक यू पाजी, आप जब बुलाओगे मैं हाजिर हूँ पाजी। थैंक्स देवा, थैंक यू कन्नड़ भाई, नमस्ते। नमस्ते पाजी। नमस्ते मेरे भाई। मेरा थिंग पाजी, मैं आपका ये शो देखा हूँ, भले ही मैं 2-4 शो आपका देखा हूँ, एक सुशांत के साथ हुआ था और राइट, ऐसे 2-3 शो में देखा हूँ। मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल बी कमिंग टू दिस शो एंड हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ यू, सो इट्स ग्रेट प्लेजर और फॉर मी पाजी टू be part of this. Thank you for inviting me. And second thing, I'd like to thank to all our club's executive members, Spartans, boys, right, whoever has supported me throughout this year. So I would like to thank them from this platform, and also some of the strikers players like Karthik, Satya and Rudy, whoever has supported me behind the scene, which many of you doesn't know, called me up in the initial days, and then motivated me and provided me some support. So that I never thanked them, so I thought this is the right platform to thank them. But yes, and all the Spartans boys, I don't want to name because there are a lot of bunch of people have played in Spartans, each and every one of them supported me. We have a lot of discussion, argument, but yeah, these are all healthy argument, discussion happens this part of the game. So yeah, thank you boys for all this what we have done this year, and hope we will do better next year. आज म्यूट में हो पाजी, यू आर ऑन म्यूट आई थिंक। यू ऑन म्यूट, ये तो हमारा साथ अब जुड़ गया है, यू ऑन म्यूट सिंस कोविड। So guys, thank you very much for your presence, and thank you Shushi bhai, you joined us, and यही है यार SWCC TV. We are back. We'll bring you much more players, captains, top performers, every member of SWCC and their views, what they have. Everybody have right to say what they want, and I would explore more opportunities to bring these guys back again, because लगता है 45 मिनट रिकॉर्ड किए हैं, इनफ नहीं है, तो दोबारा एक और एपिसोड करना पड़ेगा, और सरप्राइज देने पड़ेंगे। बट थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू पाजी। एक क्वेश्चन है आपको, मेरा एक क्वेश्चन है पाजी, can I ask that question quickly? One question, sure, or one answer. Yeah. 2023 Cricket World Cup, who will be the champion? क्या सवाल पूछ दिया। One answer. इसका जवाब देंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। उसके लिए बने रहिए, उसके लिए बने रहिए। पाजी का जवाब मिलेगा, कौन नेक्स्ट एपिसोड वर्ल्ड कप जीतेगा। दादा को मैं पर्सनली बता दूंगा कॉल करके, लेकिन कौन जीतेगा इस चैट में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस वेरी मच। थैंक्स पाजी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you Paji, thank you, it's an honor. Thank you. Cheers, bye. ओके दादा, बाय।